السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دشت جنوں قسط نمبر 71۔ معزز سامعین حضرات، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ وہ تینوں صبح دیر سے اٹھے تھے۔ سلطانہ ان سب سے پہلے بیدار ہوئی تھی۔ اس نے کچن میں جا کر اپنے لیے چائے کا ایک کپ بنایا اور برآمدے میں آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ چائے کی چسکے لیتے ہوئے صورتحال کے بارے میں سوچنے لگی۔ کراچی کے حالات انتہائی ناگفتہ بے تھے۔ مٹھی بھر دہشت گردوں نے 1 کروڑ کی آبادی کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ وہ جہاں اور جب چاہتے اندھا دھند فائرنگ کر کے معصوم اور بے گناہ لوگوں کو خاک و خون میں لوٹا دیتے۔ کوئی انہیں روکنے والا نہیں تھا۔ پولیس ناکام ہو چکی تھی۔ کسی علاقے میں دہشت گردی کی اطلاع ملنے پر بھی پولیس اس طرف کا رخ نہیں کرتی تھی۔ شہریوں کے دلوں میں پولیس کے خلاف نفرت بڑھ رہی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں یہ تاثر جڑیں پکڑنے لگا تھا کہ پولیس ان دہشت گردوں سے ملی ہوئی ہے۔ تخریب کاری اور دہشت گردی کی ساری وارداتیں پولیس کی سرپرستی میں ہو رہی ہیں، لیکن سنجیدہ خیالات رکھنے والے جانتے تھے کہ اس میں بھی پولیس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ شہر کی آبادی کے لحاظ سے پولیس کی نفری بہت کم تھی، جو صورتحال پر قابو پانے کے لیے قطعی ناکافی تھی۔ شہر میں روزانہ 10-15 افراد دہشت گردی کے شکار ہو رہے تھے۔ سلطانہ نے چائے پیتے ہوئے گیٹ کی طرف دیکھا۔ گیٹ کے اندر کی طرف اخبار پڑا تھا۔ وہ جا کر اخبار اٹھا لائے۔ اخبار کی شہ سرخی دہشت گردوں کی وارداتوں سے متعلق تھی۔ اخباری اطلاع کے مطابق گزشتہ روز شہر کے مختلف علاقوں میں 12 افراد دہشت گردی کے شکار ہوئے تھے، جن میں 2 بچے بھی شامل تھے۔ اخبار کی لو کے عین نیچے ایک اور 3 کالمی دلچسپی خبر تھی۔ پرسرا عورت 2 دہشت گردوں کو باندھ کر فرار ہو گئی۔ دونوں دہشت گرد رفاع عام سوسائٹی میں ہونے والی خونریزی میں ملوث تھے۔ اس کے نیچے نائلہ کے حوالے سے گزشتہ رات کے واقعے کی تفصیل تھی۔ پولیس کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ پرسرا عورت پولیس کو دیکھ کر جھاڑو میں فرار ہو گئی تھی۔ پولیس نے یہ شبہ بھی ظاہر کیا تھا کہ اس پرسرا عورت کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا۔ اس آدمی کے بارے میں صرف ایک کانسٹیبل کا بیان تھا، جبکہ دوسرے پولیس والوں نے اس سے لاعلمی کا اظہار کیا تھا۔ تاہم پولیس پارٹی کے انچارج ہے کانسٹیبل نے اسے پرسرا عورت قرار دیتے ہوئے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ اسے فوری طور پر پولیس سے رابطہ قائم کرنا چاہیے، تاکہ اس سے ان دہشت گردوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی جا سکے۔ خبر کے آخر میں یہ بھی بتایا تھا کہ پولیس بڑی سرگرمی سے اس پرسرا عورت کو تلاش کر رہی تھی۔ سلطانہ نے خبر پڑھنے کے بعد اخبار ایک طرف رکھ دے چائے کی چسکے لیتے ہوئے سوچنے لگی کہ رات کو پولیس والے نائلہ کا چہرہ نہیں دیکھ سکے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ محفوظ تھی۔ کچھ دیر بعد نائلہ اور عبدالقدوس بھی اپنے اپنے کمروں سے نکل کر برآمدے میں آگے۔ سلطانہ نے ان کے لیے بھی چائے بنا لائی۔ چائے کے دوران وہ اخبار کی اس خبر پر تبصرہ کرتے رہے۔ پولیس نے مشورہ دیا ہے کہ تم ان سے رابطہ قائم کرو، تاکہ تم سے دہشت گردوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی جا سکے۔ سلطانہ نے نائلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو کہ کسی سے معلومات حاصل کرنے کے لیے پولیس کیا طریقہ اختیار کرتی ہے۔ نائلہ نے جواب دیا، اس لیے میں اس مشورے پر عمل نہیں کر سکتی۔ وہ کچھ دیر اور باتیں بھی کرتے رہے۔ پھر سلطانہ نے اٹھ کر ناشتہ تیار کیا۔ ناشتے کے بعد عبدالقدوس یونیورسٹی چلا گیا۔ اسے اگرچہ دیر ہو چکی تھی، مگر وہ ناغہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ 3 بجے کے لگ بھگ واپس آیا تھا۔ نائلہ اور سلطانہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ وہ دونوں کھانا کھا چکی تھی۔ عبدالقدوس نے بھی کھانا کھایا اور بوبی کے مکان کا نمبر معلوم کرنے کے بعد اپنے مشن پر روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنا وہی پرانا لباس پہنا تھا، بڑے برقع پاجامہ اور ڈھیلا ڈھالا کرتا۔ چہرے پر کہیں کہیں داڑھی کے بے ترتیب بال، اس حلیے میں اس پر کسی قسم کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عبدالقدوس کی واپسی رات 9 بجے ہوئی تھی۔ وہ بڑی تفصیل سے معلومات حاصل کر کے آیا تھا۔ بوبی کا اصل نام تنویر احمد تھا۔ وہ کراچی یونیورسٹی کے گریجویٹ ہے۔ گریجویشن کے بعد وہ کافی عرصہ بیکار رہا۔ باپ کی دولت پر عیش کرتا رہا۔ آوارہ دوستوں کے ساتھ اکثر راتوں کو گھر سے غائب رہتا تھا۔ باپ نے یہ سوچ کر اس کی شادی کر دی کہ شاید ذمہ داری کو احساس کرتے ہوئے سنبھل جائے، لیکن وہ کچھ اور بگڑ گیا۔ باپ نے اسے رہائش کے لیے نارتھ ناظم آباد والا بنگلہ دے دیا تھا۔ اس طرح الگ رہنے سے اسے مزید آزادی مل گئی اور وہ آوارہ دوستوں اور لڑکیوں کو گھر لانے لگا۔ اس کی بیوی نے کئی مرتبہ احتجاج کیا، لیکن اسے نہ تو بیوی کی پرواہ تھی اور نہ ہی باپ کی دھمکیوں کی۔ شادی کے بعد تقریباً وہ 2 ماہ تک گھر سے غائب رہا۔ واپس آنے کے بعد اس کی آوارگیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ باپ نے اور دوسرے عزیزوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے کسی کی نصیحت قبول کرنے کے بجائے بیوی کو طلاق دے دی۔ باپ نے غصے میں آ کر اسے آگ کر دیا، لیکن اس بنگلے پر قابض ہے۔ تقریباً 3 ہفتے پہلے باپ نے اسے بنگلہ خالی کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے باپ کو دھمکی دی گا کہ اس سے بنگلہ خالی کرایا گیا تو اسے قتل کر دے گا۔ باپ بیچارہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اس محلے کے لوگ بھی بوبی اور اس کے دوستوں کی حرکتوں سے پریشان ہیں۔ وہ آوارہ لڑکی کو لے کر آتے ہیں اور رات بھر ہلڑ بازی کرتے رہتے ہیں۔ محلے کے لوگوں نے 1-2 مرتبہ پولیس میں ان کے خلاف شکایت کی تھی، لیکن پولیس نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ البتہ محلے کے بعض لوگوں کو دھمکایا گیا۔ بوبی اور ان کے ساتھیوں نے بھی محلے والوں کو دھمکیاں دی تھی کہ اگر آئندہ ان کے خلاف پولیس میں شکایت کی گئی تو انہیں زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ محلے کے لوگ خاموش ہو گئے اور یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، لیکن وہ ان سے خوفزدہ ہیں۔ ان کے ساتھ والے بنگلے کے مکین تو بنگلہ خالی کر کے کہیں اور جا چکے ہیں اور مکان پر برائے فروخت کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ میری معلومات کے مطابق قریبی مارکیٹ میں ایک پان والا بوبی کے ایجنٹ کے حیثیت سے کام کرتا ہے۔ وہ اسے مختلف قسم کی مختلف معلومات فراہم کرتا رہتا ہے۔ میں نے اس پان والے کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی ہیں۔
वो पहले अपने पान सिगरेट के कैबिनेट पर रिबन भी बेचा करता था, लेकिन एक तो मरतबा पकड़े जाने के बाद इसने रिबन का धंधा छोड़ दिया। अब सुनने में आया कि वो भी और बास दीगर बिगड़े हुए नौदौलतियों की लड़कियों को सप्लाई करता है। सबसे ज्यादा हैरत इस बात की है कि पान सिगरेट बेचने वाले इस शख्स के पास मोबाइल टेलीफोन भी है। गुड। नैला की आंखों में चमक उभर आई। तुम्हें तो सुराग रसानी के महकमा में होना चाहिए। तुमने जिस तफसील से मालूमात हासिल की है वो काबिल तारीफ है। जब कुछ करने की लगन हो तो फिर मुश्किल नहीं रहती। अब्दुल कुद्दूस ने जवाब दिया। इस तरह हिम्मत भी आ जाती और अकल भी। इसका मतलब है पहले तुम अकल से पैदल थे, सुल्ताना ने कहा। हाँ यही समझ लो, अब्दुल कुद्दूस बोला। पहले मुझ में ना अकल थी ना हिम्मत, लेकिन उस रात जब तुम दोनों मेरे घर में दाखिल हुई और बाद में जब पता चला कि तुम लोग क्या करके आई हो तो मैं वाकई बड़ा हैरान हुआ था। मैं इस बात के एतराफ़ करने में कोई यार नहीं समझता कि मैं तुम्हारे हुस्न से मुतासिर हो गया था। इसने अजीब सी निगाहों से सुल्ताना की तरफ देखा। तुम्हें देख के मेरे दिल में कुछ अजीब सी कैफियत पैदा हो गई थी। मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर तुम लोगों को वहाँ रहने की इजाज़त दी थी, लेकिन क्या? सुल्ताना ने मुस्कुराती हुई निगाहों से इसकी तरफ देखा। लेकिन बाद में पता चला कि तो लड़के अपने वतन के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए हुए हैं। तो मुझे बड़ी नदामत महसूस हुई कि मैं एक मर्द होकर भी घर में छुपा बैठा रहता हूँ। कहीं गोले चलने की आवाज़ भी सुनाई देती है तो मैं दरवाजे बंद करके दुबक सा बैठ जाता हूँ। तुम लोगों को देखकर मुझे हौसला मिला और मैंने भी इस नेक काम में तुम लोगों का साथ देने का फैसला कर लिया। अब मेरी जिंदगी वतन के लिए है जिसकी मिट्टी से मैंने जन्म लिया था। और मैं, सुल्ताना की होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। तुम्हारी कदर अब भी मेरे दिल में है। अब्दुल कुद्दूस ने कहते हुए नजरें झुका ली। शर्माने की जरूरत नहीं, नैला ने मुस्कुराते हुए कहा। ये जो सुल्ताना है ना, ये इत्तेफाक से बड़ी बेशरम और ढीठ वाक़ई हुई है। इसके होंठों पर अक्सर तुम्हारा ही तस्करा रहता है। अब्दुल कुद्दूस ने जवाब देने के बजाय कनखी से सुल्ताना की तरफ देखा। वो लड़की से ज्यादा शर्मा रहा था और उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। अच्छा अब काम की बात हो जाए, नैला ने कहा। हमारा इरादा है कि आज रात ही बॉबी के बंगले पर रेड किया जाए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो इस वक्त अपने बंगले पर मौजूद हो। इसलिए तुम यूं करो कि खाना खाने के बाद रात 10 बजे के करीब वहाँ पहुँच जाओ और बंगले की निगरानी करते रहो। तुम्हारे पास टेलीफोन कार्ड्स तो होंगे और इस इलाके में टेलीफोन बूथ भी होंगे। सूरत-ए-हाल मुवाफिक हो तो फोन कर देना, हम फौरन पहुंच जाएंगी। ठीक है, मैं खाना खाकर रवाना हो जाऊंगा, अब्दुल कुद्दूस ने कहा। और फिर रात का खाना खाने के बाद अब्दुल कुद्दूस 10 बजे के करीब वहां से रुखसत हो गया। इस वक्त इसने पैंट शर्ट पहन ली थी ताकि भागदौड़ में आसानी रहे। इसके थोड़ी देर बाद सुल्तान और नैला भी बंगले से निकल आई। इन्हें अपने मिशन की एक गाड़ी की जरूरत थी और वो गाड़ी हासिल करने के लिए एक मंसूबा बनाकर घर से निकली थी। डिस्को बेकरी वाले चौक पर खासी चहल पहल थी। वो इधर उधर टहलती रही। ऊपर एक सुबह सुजुकी के करीब रुक गई जो अभी भी वहां आकर रुकी थी। सुजुकी में सिर्फ एक ही आदमी था जो गाड़ी से उतरकर इनकी तरफ देखते हुए सिगरेट पान की दुकान की तरफ बढ़ गया था। जब वो करीब से गुजरा तो कीमती सेंट की महक इनके नथनों से टकराई। वो एक जवान आदमी था, रूले और लिबास से शौकीन मिजाज भी लगता था। सिगरेट की दुकान के सामने खड़ा वो बार बार इनकी तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद सिगरेट का पैकेट लेकर वापस आया तो गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए इनकी तरफ देख रहा था। सुल्तान ने इसकी तरफ देखते हुए बाएं आंख का गोशा दबा दिया। आप अगर कहीं जाना तो मैं छोड़ दूं? वो आदमी सुल्ताना की तरफ देखते हुए बोला। अगर ऐसा हो तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी। सुल्ताना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो आइए बैठिए। इस शख्स ने स्क्रीन के सामने बैठते हुए पीछे सीट का दरवाजा खोल दिया। नैला पीछे बैठकर सुल्ताना अगली सीट पर। गाड़ी हरकत में आ गई। सुल्ताना के कहने पर इस शख्स ने कार धूरा जी कॉलोनी की तरफ मोड़ ली और इसकी हदायत पर मुख्तलिफ गलियों में घुमाता रहा। वो आदमी कुछ परेशान सा हो गया। अगर आपके पास कोई जगह नहीं तो मैं नहीं, ये बात नहीं। सुल्तान इसकी बात काट दी। दरअसल हम नहीं चाहती कि हमारे साथ जाने वाला कोई शख्स हमारी रहायश का देख ले। आप समझे ना, बाज पुलिस वाले भी सादा लिबास में हम जैसी औरतों की ताक में रहते हैं। हम किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहती। मेरा पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं, वो शख्स बोला। मैं जानती हूँ, लेकिन हम हमेशा मुहतात रही हैं और एक तरकीब पर अमल करती हैं। वो क्या? इस शख्स ने पूछा। आप किसी सीट पर चले जाइए, मैं ड्राइव करूंगी और मेरी दोस्त आपकी आंखों पर पट्टी बांध देगी ताकि आप हमारा घर न देख सके। वापसी पर भी आपको इसी तरह मेन रोड पर ले आ जाएगा, सुल्ताना ने कहा। मुझे मंजूर है, शख्स ने कहते हुए गाड़ी रोक ली। दो जवान और हसीन लड़कियों को पाकर वो सब कुछ भूल गया कि इसके साथ धोखा भी हो सकता है। पिछली सीट पर चला गया और सुल्ताना ने स्टीयरिंग संभाल लिया। इस शख्स ने पिछली सीट पर बैठते ही नैला की रान पर हाथ रख दिया था। नैला ने कोई मुजामत नहीं की, बल्कि अपना दुपट्टा उतारकर इस शख्स की आंखों पर पट्टी बांध दी और इसका हाथ पकड़ लिया। सुल्ताना गाड़ी को तेज रफ्तारी से मुख्तलिफ गलियों में घुमाती हुई अपने बंगले वाली गली में आ गई। गली में दाखिल होते ही नैला ने शख्स की गर्दन पर हाथ से नीचे झुका दिया। गाड़ी जैसे ही बंगले के सामने रुकी, नैला से जल्दी से उतरकर गेट खोल दिया और सुल्ताना गाड़ी अंदर लेकर चली गई। नैला गेट बंद करके आ गई। शख्स का हाथ पकड़कर गाड़ी से उतार लिया। अब आंखों से पट्टी हटा दूं? इस शख्स ने पूछा। अभी नहीं प्लीज, नैला ने कहा। इस शख्स को अंदर लाने के बाद नैला उसकी आंखों से दुपट्टा खोल दिया। वो शख्स कुछ देर तक आंखें झपकता रहा, इधर उधर देखने लगा। बैठी मिस्टर, सुल्तान ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए जुमला अधूरा छोड़ दिया। अनीस, मेरा नाम अनीस है, इस शख्स ने जवाब दिया। बैठे मिस्टर अनीस, सुल्ताना ने कहा। उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठ गई।
अजनीस नाम में वो शख्स इतना उल्लू का पट्टा साबित हुआ कि इसके दिल में अब भी किसी किस्म का कोई शुबा नहीं उभरा था। हालांकि सुल्ताना ने इसके आंखों पर पट्टी बांधने को कहा तो इसे इस वक्त चौंक जाना चाहिए था, मगर दो खूबसूरत और जवान लड़कियों को देखकर शहवानी जज्बात तो इसे पहले ही अंधा कर चुके थे। कहिए चाय चलेगी? सुल्तान ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। जरूर, क्यों नहीं, अनीस ने जवाब दिया। नैला चाय बनाकर ले आई। तीनों चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद नैला भी इसी सोफे पर आ गई। अनीस दिल दिल में खुश हो रहा था। इसके दोनों पहलुओं में हसीन और जवान लड़के बैठी हुई थी। वो अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी समझ रहा था जिसे बिन मांगे दो जवान लड़के मिल गई थी। नैला ने दोनों बाजू इसकी गर्दन में हमायल कर दिए और फिर इसके आहिस्ता आहिस्ता इसकी गर्दन के मखसूस रगों पर आ गए। वो अंगूठों से इसकी नसें हिलाने लगी। अरे ये आप क्या कर रही हैं? अनीस बोला। सुल्ताना ने इसके दोनों हाथ पकड़ लिए और नैला के साथ तेजी से हरकत करने लगे। अनीस मुजाहमत करता रहा, लेकिन 2 मिनट के बाद इसकी मुजाहमत कमजोर पड़ गई और वो नैला की बाहों में झूल गया। कमबख्त, नैला से धकेल कर उठ गई। हवस ने इन मर्दों को अंधा कर रखा है और उनको देखकर इनकी अक्ल घास चढ़ने चली जाती है। अगर इसकी अक्ल घास न चढ़ने चली जाती तो इस वक्त हमारा काम कैसे बनता? सुल्ताना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब ये कम से कम 2 घंटों से पहले होश में नहीं आएगा, लेकिन इसे इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता है। नैला ने कहा। दोनों से घसीटते हुए तीसरे बेडरूम में ले आई, जो आमतौर पर खाली ही रहता था। अनीस को कालीन पर डालकर इसके हाथ पैर बांध दिए और मुंह में भी कपड़ा ठोंस दिया गया। उन्होंने दोनों दहशतगर्दों से छीनी हुई ऑटोमेटिक राइफल निकालकर चेक की और इन कार की सीट के नीचे छुपा दिया। फिर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। टेलीफोन उन्होंने अपने सामने मेज पर रख लिया था। वो फोन की घंटी बजने का इंतजार करती रही। तकरीबन 12:30 बजे की घंटी बजी। सुल्तान ने लपक कर रिसीवर उठा लिया। अब्दुल कुद्दूस बोल रहा हूँ। रिसीवर कान से लगाते अब्दुल कुद्दूस की आवाज इसके पास से टकराई। यस, क्या रिपोर्ट है? सुल्तान ने पूछा। वो भी थोड़ी देर पहले 2 आदमियों के साथ बंगले में वापस आया है। इसके साथ एक औरत भी है, अब्दुल कुद्दूस ने बताया। गुड, तुम इस वक्त कहाँ हो? सुल्तान ने पूछा। इलाके के शॉपिंग सेंटर में लगे हुए टेलीफोन बॉक्स से बोल रहा हूँ। यहाँ एक पान सिगरेट की दुकान और रेस्टोरेंट खुला हुआ है। मैं इस रेस्टोरेंट में इंतजार करूंगा, अब्दुल कुद्दूस ने कहते हुए रेस्टोरेंट का नाम भी बता दिया। ठीक है, हम फौरन यहाँ से रवाना हो रही हैं। सुल्तान ने कहते हुए फोन बंद कर दिया और नायला को सूरत हाल से आगाह करने लगी। तो फिर निकल पड़ो, नायला कहते हुए उठ गई। इसने अलमारी से भी पिस्तौल निकाल लिया था। उस बेडरूम में आ गई जहाँ अनीस बंधा हुआ था। होश में आ चुका था, इसकी आंखें खुली हुई थी। नायला के हाथ में पिस्तौल देकर इसके चेहरे पर खौफ फैल गया। डरने की जरूरत नहीं, नायला इसके देखते हुए कहा। हमें कुछ देर की तुम्हारी गाड़ी की जरूरत थी, इसलिए हमने तुम्हें फांसा था। और तुम एक बात याद रखना, सड़क के किनारे खड़ी हुई हर औरत आवारा और बचैला नहीं होती। मुझे यकीन है कि आइंदा तुम किसी औरत को ऐसी नजर से नहीं देखोगे। इस वक्त हम जा रही हैं, 2-2.5 घंटे बाद वापसी होगी। तुम्हें सुबह होने से पहले पहले छोड़ दिया जाएगा। वो कमरे से बाहर आ गई और फिर कुछ ही देर बाद सुजुकी पर सवार बंगले से निकल रही थी। मेन रोड पर आते ही सुल्तान ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। गुलशन चुरंगी पर पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी, जिसका मतलब था कि कहीं कोई वारदात हुई थी। किसी वारदात के बाद ही पुलिस गाड़ियों की चेकिंग शुरू करती थी। इनकी कार को भी रुकने का इशारा किया गया। नायला ने करीब पहुंचकर गाड़ी रोक ली। एक पुलिस वाले ने अंदर झांक कर देखा, वो दोनों औरतें थी, इसलिए इन्हें जाने की इजाजत दे दी गई। नायला ने चुरंगी से गाड़ी दाएं हाथ पर मोड़ ली और कार की रफ्तार बढ़ा दी। सोहराब गोट वाले चौराहे पर भी चेकिंग हो रही थी। वहाँ भी 2-3 गाड़ियां पहले ही खड़ी थी। पुलिस वाले सीटें उठाकर गाड़ी को चेक कर रहे थे। दूर कहीं से फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। 2 पुलिस वाले इनकी गाड़ी के दाएं बाएं आकर खड़े हो गए। एक पुलिस वाले पीछे सीट पर झांक कर देखा, फिर नायला की तरफ देखते हुए बोला, आप लोग कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं? पुलिस वाले ने पूछा। शादी की एक तकरीब से आ रही है, नॉर्थ नाजमाबाद जाना है, नायला ने जवाब दिया। बफर जोन में बड़ी जबरदस्त फायरिंग हो रही है। पुलिस ने दहशतगर्दों के गिरोह को घेरे में ले रखा है। आप इस तरफ नहीं जा सकती, गुलबर्ग की तरफ से निकल जाइए, पुलिस वाले ने कहा। शुक्रिया जनाब, नायला ने कहते हुए गाड़ी को रिवर्स करने लगी। इस पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वालों को इशारा किया। नायला की गाड़ी मजीद रुकावट के बजाय वाटर पंप की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गई। इस मुल्क में औरत होने का यही फायदा है, नायला ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें औरत होने के नाते कम से कम इतनी राहत तो हासिल है कि हमारी गाड़ी को चेक नहीं किया गया। अगर चेक कर लेते तो? सुल्ताना ने पूछा। तो फिर वो पुलिस औरत हिरासत में ले ली जाती जिसकी पुलिस को तलाश है, नायला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुल्ताना ने हल्का सा कहका लगाया। नायला ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। इस वक्त रात का 1 बजने वाला था। सड़क पर ट्रैफिक बहुत कम था। न्यू कराची के लिए रात पर चलने वाली मिनी बसें भी इक्का दुक्का दिखाई दे रही थी। वाटर पंप से गुलबर्ग की तरफ मोड़ने के बजाय नायला गाड़ी को सीधी लेती चली गई और फिर आयशा चुरंगी से इसने गाड़ी दाईं तरफ घुमा दी। नॉर्थ नाजमाबाद के बलाक हाई के शॉपिंग सेंटर तक पहुंचने में 45 मिनट लगे। इस वक्त 1:15 बज रहा था। तमाम दुकानें बंद थी, वो रेस्टोरेंट भी बंद हो रहा था। नायला कुछ दूर गाड़ी को रोककर इधर उधर देखने लगी। चंद सेकंड बाद अब्दुल कुद्दूस कहीं से निकलकर सामने आ गया। होटल वाले मुझे मुश्तबा नजरों से देख रहे थे, इसलिए वहां से उठकर इस छोटे से पार्क में चला गया था। अब्दुल कुद्दूस ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, हमें रास्ता बताओ। नायला ने गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहा। आगे बाईं तरफ मोड़ लो, अब्दुल कुद्दूस ने जवाब दिया।
نیلا اس کی ہدایت پر مختلف گلیوں میں گاڑی موڑتی رہی اور ایک جگہ گاڑی روک لی۔ وہ بنگلوں کی آخری قطار تھی، اس سے آگے کچھ فاصلے پر پہاڑی تھی۔ اس گلی میں بائیں طرف تیسرا بنگلہ ہے، عبدالقدوس نے بتایا۔ وہ تینوں نیچے اتر آئے۔ نیلا نے سیٹ کے نیچے اسلحہ نکال لیا، پستول خود لے لیا، ایک رائفل عبدالقدوس کو تھما دی اور ایک سلطانہ کے حوالے کر دی۔ قدوس، تم بنگلے کی پچھلی طرف جاؤ اور سلطانہ تم میرے ساتھ آؤ، نیلا نے کہا۔ عبدالقدوس رائفل سنبھالتے ہی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پہاڑی والی سمت میں چلا گیا اور نیلا اور سلطانہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گلی میں چلنے لگے۔ دوسرے بنگلے کے گیٹ پر برائے فروخت کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ یہ کسی پینٹر کا لکھا ہوا بورڈ نہیں تھا، گھر کے کسی فرد نے گتے پر لکھ کر لگا دیا تھا۔ اس بنگلے میں شاید کوئی چوکیدار نہیں رکھا گیا تھا، کیونکہ بنگلہ مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دونوں اس بنگلے کے سامنے پہنچی ہی تھی کہ چوکیدار کی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ جلدی کرو، اس دیوار پر چڑھ کر اندر کی طرف کود جاؤ، نیلا نے سرگوشانہ لہجے میں کہا۔ سلطانہ بڑی پھرتی سے گیٹ کا سہارا لے کر دیوار پر چڑھ گئی اور دوسری طرف کود گئی۔ نیلا بھی دیوار پر چڑھ گئی۔ ٹھیک اسی لمحہ سائیکل سوار چوکیدار اس گلی میں گھوما تھا۔ نیلا نے جلدی سے اندر کی طرف چھلانگ لگا دی۔ ان دونوں کی باری باری کودنے سے دھپ دھپ کی اچھی خاصی آوازیں ابھری تھی۔ نیلا نے ادھر ادھر دیکھا اور سلطانہ کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے اوپر جانے والی سیڑھیوں کے نیچے گھس گئی۔ چوکیدار سیٹی پہ جاتا ہوا سامنے سے گزر گیا۔ ساتھ والے بنگلے سے ٹی وی کی آواز سنائی دے رہی تھی، غالباً VCR پر کوئی انڈین فلم چل رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کہکوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ ان کہکوں میں ایک نسوانی آواز بھی شامل تھی۔ وہ دونوں کچھ دیر تک سیڑھیوں کے نیچے دبکی رہی، پھر باہر نکل کر صورتحال کا جائزہ لینے لگی۔ اس لائن کے 4 بنگلے کسی کنسٹرکشن کمپنی سے تعمیر کیے گئے تھے۔ تمام بنگلوں کا ڈیزائن اور طرز تعمیر ایک ہی جیسا تھا اور ان بنگلوں کے مکینوں نے بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ نیلا گہری نظر سے ساتھ والے بنگلے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا خیال اس بنگلے کی چھت سے جس سے بنگلے تک پہنچا جا سکتا ہے، نیلا نے سلطانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ دونوں بنگلوں کی چھتوں کے ساتھ کارنس اس بنگلے سے دوسرے بنگلے تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، سلطانہ نے جواب دیا۔ وہ دونوں دبے قدموں سیڑھی پر چڑھتی ہوئی چھت پر آ گئی اور منڈیر پر جھک کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ وہ کارنس منڈیر سے تقریباً 4 فٹ نیچے تھی اور دوسرے بنگلے کی کارنس بھی اس کے برابر ہی تھی۔ پہلے نیلا منڈیر پر چڑھ کر نیچے اتری اور پھر سلطانہ۔ کارنس تقریباً 3 فٹ چوڑی تھی، دوسری طرف کی کارنس بھی اتنی ہی چوڑی تھی، لیکن دونوں کے درمیان فاصلہ 4 فٹ کا تھا۔ چھلانگ لگا کر دوسری کارنس پر جانا ہوگا، وہ لوگ آواز سن کر ہوشیار ہو جائیں گے، سلطانہ نے سرگوشی کی۔ ٹی وی چل رہا ہے، ان کے کہکے گونج رہے ہیں، اس شور میں ہمارے کودنے کی آواز نہیں سن سکیں گے، نیلا نے کہا۔ چند لمحے دوسری کارنس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے چھلانگ لگا دی۔ آواز زیادہ نہیں ہوئی تھی، وہ دونوں اپنی اپنی جگہوں پر دبکی رہی اور جب کوئی ردعمل ظاہر نہیں ہوا تو سلطانہ نے بھی اپنی رائفل نیلا کی طرف بڑھا دی اور پھر خود چھلانگ لگا دی۔ سلطانہ کے کودنے کی آواز کسی قدر زیادہ تھی، وہ دونوں بڑی پھرتی سے کارنس پر لیٹ گئی۔ چند سیکنڈ بعد نیچے کا کوئی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، قدموں کی آواز ابھری، پھر ایک آواز سنائی دی، کوئی نہیں ہے، کسی کو مرنا ہے ادھر آ کے۔ نیلا اور سلطانہ نے اپنا سانس روک رکھا تھا، وہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ شخص اوپر آ گیا تو وہ نہیں بچ سکیں گی، لیکن یہ غنیمت تھا کہ وہ شخص اوپر آنے کے بجائے کمرے میں واپس چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک اور اپنی جگہ پر دبکی رہی اور پھر اٹھ کر بڑی آہستگی سے منڈیر پر چڑھنے لگی۔ چھت پر وہ بہت دبے قدموں چلتی ہوئی زینے پر آ گئی اور پھر بڑی آہستگی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ ان دونوں کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، انہیں پوری طرح احساس تھا کہ وہ بھیڑیوں کے بھٹ میں گھس رہی ہیں، ان کی ذرا سی غلطی انہیں موت کے منہ میں پہنچا دے گی۔ وہ دونوں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ بھی راجستھان میں رہ کے کیمپ کا تربیت یافتہ تھا، ہو سکتا ہے اس کے ساتھی بھی اسی کیمپ کی تربیت یافتہ ہوں۔ اگر وہ تربیت یافتہ نہ بھی ہوں تو بہرحال وہ خطرناک لوگ تھے اور اب تک نہ جانے کتنے لوگ وہ موت کی نیند سلا چکے تھے۔ سیڑھیوں سے اتر کر وہ برآمدے میں آ گئی۔ نیلا نے برآمدے کے دروازے کی طرف دیکھا، پھر دروازے کے ساتھ والی کھڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ اس کمرے میں روشنی تھی، لیکن کھڑکی کے سامنے پردہ پڑا ہوا تھا اور اندر جھانکنے کی کوئی جگہ نظر نہیں آئی۔ تم یہیں رکو، میں دوسری طرف جا رہی ہوں، نیلا کہتے ہوئے برآمدے سے نکل کر بائیں طرف مڑ گئی۔ اس طرف تقریباً 6 فٹ اوپن سپیس تھی اور اس سائڈ کی کھڑکیوں میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ نیلا دبے قدموں آگے بڑھتی گئی اور ایک دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ دروازے کے دونوں طرف کھڑکیوں پر دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے جھک کر دروازے کے کی ہول سے آنکھ لگا دی، لیکن اندر کا منظر دیکھتے ہی جھٹکے سے سیدھی ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ وہ چند لمحے اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی اور پھر سے دوبارہ کی ہول سے آنکھ لگا دی۔ یہ ٹی وی لاؤنج تھا، قالین بچھا ہوا تھا، ٹی وی سائیڈ میں رکھا ہوا تھا جو دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ سامنے ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ شخص عورت سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا اور عورت کہکے لگا رہی تھی۔ تقریباً اسی لمحہ ایک اور آدمی عورت کو بازو سے پکڑ کر بائیں طرف لے گیا۔ وہ شخص ایک لمحہ کو کی ہول کی رینج میں آیا تو نیلا سے پہچانے وہ بھی تھا۔ نیلا سیدھی ہو گئی۔ وہ کچھ دیر تک اپنے بے ربط تحفظ پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی، پھر اس نے دائیں ہاتھ میں پستول سنبھالا اور بائیں ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رکھ کر اسے بڑی آہستگی سے گھمانے لگی۔ دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا، ہینڈل آہستہ آہستہ گھومتا چلا گیا اور پھر نیلا نے ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ خبردار کوئی اپنی جگہ سرکت نہ کرے، پستول تانتے ہوئے غرائی۔ وہ سب ایک دم گڑبڑا گئے۔ عورت کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس نے اپنے آپ کو بوبی کی گرفت سے چھڑایا
और दौड़कर कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। वो आदमी जिसने पहले इस औरत को दबोचा हुआ था दीवार के करीब पड़ी हुई कलाशनिकोव की तरफ लपका। नैला ने पिस्तौल का ट्रिगर दबा दिया। स्टक की आवाज उभरी, पिस्तौल की नाल से शोला निकला और गोली शख्स के हाथ पर लगी। इस शख्स की उंगली की पोर उड़ गई। वो शख्स चीखता हुआ पीछे हट गया। ये गोली तुम्हारी खोपड़ी में भी लग सकती थी। नैला के अलग से गुर्राहट निकली। और ये तुम लोग देख चुके हो कि ये पिस्तौल शोर मचाना पसंद नहीं करता और तुम लोगों की शोर की मुझे परवाह नहीं। मोहल्ले का कोई आदमी चीखों की आवाज सुनकर तुम्हारी मदद को नहीं आएगा और ना ही कोई पुलिस को इत्तला देगा। इस इलाके के सभी शरीफ आदमी तुम लोगों के आजिज आ चुके हैं। तुम लोगों की लाशें देखकर इन्हें खुशी होगी। अब कोई अपनी जगह से हरकत न करे। तुम कौन हो? जख्मी आदमी से घूरा। इसकी उंगली से खून टपक रहा था। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि तुम शेरों की किचार में घुसाई हो और यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकोगी। शेर नहीं भेड़िया, नैला घुर्राते हुए कहा। तुम लोग खूंखार भेड़िए हो, जब तक निहत्ते और मासूम लोगों को जिंदगियों से खेलते रहे हो। लेकिन शायद ये भूल गए हो कि एक योम हिसाब भी होता है और आज तुम्हारा योम हिसाब है। तुम्हें बेगुनाहों के खून का एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। हम पर आज तक वो लोग भी हाथ नहीं डाल सके जो अपने आप को कानून के मुहाफिज कहलाते हैं। तुम एक औरत, इस खिलौने से हमारा क्या बिगाड़ सकोगी? इस शख्स ने कहा और बात जारी रखते हुए बोला, तुम्हें अगर हमसे कोई नुकसान पहुंचा है उसका अजाला करने को तैयार है। वो ब्रीफकेस नोटों से भरा हुआ है, इसे उठाओ और यहाँ से चली जाओ। हम में से कोई भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेगा। इसने कमरे में रखे ब्रीफकेस की तरफ इशारा किया। नैला ने इधर उधर देखा। कमरे में वाल टू वाल कालीन बिछा हुआ था और किसी किस्म का फर्नीचर नहीं था। एक तरफ टीवी रखा हुआ था और इस ट्राली के नीचे हिस्से में वीसीआर रखा हुआ था। टीवी पर जो फिल्म चल रही थी वो भी खासी हयासोस थी। एक तरफ शराब की 2 बोतलें पड़ी हुई थी। तीसरी बोतल में आधी के करीब शराब मौजूद थी। 4 गिलास भी पड़े हुए थे। 2 गिलासों में शराब थी और 2 खाली थे। मेरा नुकसान जो हुआ है वो तुम कभी पूरा नहीं कर सकते, नैला ने कहा। क्या तुम इन लोगों की जिंदगियां लौटा सकते हो जिन्हें तुम लोगों ने बेदर्दी से मौत के घाट उतारा है? इन लोगों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम अपनी बात करो। वो शख्स बोला। वो सब मेरे लोग थे, नैला ने जवाब दिया। मेरे हमवतन, मेरे हम मजहब। लेकिन तुम लोग अपना ईमान बेच चुके हो। तुम्हारा ज़मीर मर चुका है। हिंदू बनियों के कहने पर तुम लोग अपने ही लोगों को खाको खून में लौटा रहे हो। लेकिन अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। कौन हो तुम? इस मर्तबा बोबी ने कहा। वो गहरी नजरों से नैला की तरफ देख रहा था। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, नैला इसकी तरफ देखते हुए बोली। मैंने भी राजस्थान के इसी कैंप में ट्रेनिंग ली है जहाँ से तुमने दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की थी। ओह तुम! इस मर्तबा वो भी चौंक गया। तुम नैला दुरानी हो। तुम्हारे बारे में तो यहाँ तमाम लोगों को आगाह कर दिया गया है कि तुम्हारे साथ 2 लड़कियां और भी हैं जो कैंप तबाह करके भागी थी। तुम तीनों को तो देखते ही गोली मार देने का हुक्म मिला हुआ है। हैरत है कि तुम अभी तक जिंदा हो। मैं आसानी से मरने वाली नहीं हूँ, नैला ने जवाब दिया। शौकत और इसके कुछ साथियों को तो हमने इसके इंजाम तक पहुँचा दी है और अब तुम्हारी बारी है। ओह, वो भी चौंक गया। तो वो तुम थी? हाँ, और तुम्हारे बाद किसी और की बारी आएगी। मैं एक एक करके तुम सब लोगों को ठिकाने लगा दूंगी, नैला ने कहा। तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो भी ने मुस्कुराते हुए फिर नैला के पीछे देखते हुए चीखा। रुक जाओ, गोली मत मारना। नैला दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। इसी एक लम्हे से फायदा उठाते हुए वो भी ने राजारी वाले दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी, जबकि इसके दूसरे साथी ने बेजाक वक्त नैला की तरफ लपके थे। नैला दुरानी बोबी की इस नफसियाती हरबे का शिकार हो गई थी। इसे संभलने की कोशिश की मगर जख्मी उंगली वाला इस तक पहुंच चुका था। इसके पैर की ठोकर नैला के हाथ पर लगी। पिस्तौल नैला के हाथ से छूटकर गिर गया। इसकी दूसरी ठोकर नैला के पेट पर लगी। नैला चीखते हुए दोहरी हो गई। इससे संभलने की कोशिश की मगर जख्मी उंगली वाला उसका दूसरा साथी नैला पर पिल पड़े। नैला के जिस पर ठोकरों की बारिश हो रही थी मगर इसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। बोबी राहदारी के आखिर में बरामदे में खुलने वाले दरवाजे के करीब पहुंच गया। इसने जल्दी से दरवाजा खोला लेकिन पहला कदम बाहर रखते यूं लगा जैसे इसके सीने पर किसी वजन हथौड़े की जरब लगाई हो। इसके मुंह से चीख निकल गई। वो लटका कर पीछे हटा। इसने दोनों हाथों से सीना थाम लिया था। सुल्तान ने राइफल के बट से बोबी को एक और जरब लगाई। बोबी चीखता और पीछे हटा। सुल्तान ने राइफल सीधी की और बोबी को ठोकरें मारती इस कमरे में ले आई जब बोबी के दोनों साथी नैला की पिटाई कर रहे थे। सुल्तान ने राइफल का रुख छत की तरफ करके ट्रैगर दबा दिया। कई गोलियां तड़तड़ाती राइफल से निकली। छत में कई जगह सुराख हो गई। इस लड़की को छोड़कर अलग हट जाओ वरना छलनी कर दूंगी सबको, सुल्ताना चीखी। जख्मी उग्रवाद का दूसरा साथी नैला को छोड़कर अलग हट गए। इन दोनों ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए थे। नैला कालीन पर ऊंधी पड़ी थी। वो बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ी हो सकी। इसके जिस्म का हर हिस्सा दुख रहा था। जालिमों ने बड़ी बेरहमी से इसे पीटा था। जख्मी उंगलीवाला इस दरवाजे के करीब खड़ा था जहाँ से पहले नैला अंदर दाखिल हुई थी। तुम समझते थे कि दहशतगर्दी से मर्जी कर सकते हैं, औरतें सिर्फ मर्दों को लुभाना चाहती हैं, सुल्ताना ने कहा। जो काम मर्द नहीं कर सके अब औरतें करेंगी। तुम जैसे बेगैरतों और बेरहम कातलों को औरतें ही ठिकाने लगाएंगी। इसने खामोश होकर बोबी को एक जोरदार ठोकर मारी। इस मौका से फायदा उठाते जख्मी उंगली वाले ने दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। नैला ने इसके पैर में पैर फंसाने की कोशिश की थी मगर वो कामयाब नहीं हो सकी। शख्स दरवाजे की तरफ निकल गया लेकिन दूसरे लम्हे इसकी खौफनाक चीख सुनाई दी और सिर्फ 30 सेकंड बाद लटखड़ाता हुआ दोबारा अंदर दाखिल हुआ।
अब्दुल कुद्दूस राइफल के बट से इसे ज़रबे लगा रहा था। चीख लो जितना चीखना चाहो, कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। अब्दुल कुद्दूस इसके कंधे पर राइफल के बट से एक और ज़रब लगाते हुए कहा। फिर दफातन इसने राइफल को सीधा कर लिया और इस शख्स को ठोकरों पर रख लिया। इनका तीसरा साथी दीवार के साथ लगा थर-थर कांप रहा था। इसे लड़कियों के रूप में शेरनियां दिखाई दे रही थी, जिनके चेहरों पर बेपनाह दरिंदगी थी। ओए इधर आओ, तुम वहाँ क्यों कांप रहे हो? सुल्तान ने कहते हुए उंगली से इशारा किया। मैं बेकसूर मोहकलाए, ये लोग मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते थे, मैंने आज तक किसी को नहीं मारा। इधर आओ, सुल्ताना घुर्राई। वो शख्स कांपते हुए जैसे ही करीब पहुंचा, सुल्तान ने इसके पेट पर जोरदार ठोकर मारी। वो शख्स बिलबिलाकर दोहरा हो गया। सुल्तान ने इसके कंधे पर राइफल के बट से जोरदार ज़रब लगाई। वो शख्स इसके कदमों में ढेर हो गया और फिर सुल्तान ने इसके पहलू पर इसे किसी पहलू टिकने नहीं दिया। उसे पे दर पे ठोकरों की बारिश करती रही। इस हराफा को भी निकालो, इस कमरे में बंद है। नायला चीखी। ए दरवाजा खोल, नहीं तो दरवाजे पर गोलियों की बौछार कर दूंगी। सुल्तान ने दरवाजे पर राइफल का बट मारते हुए कहा। चंद सेकंड बाद दरवाजा खुल गया। औरत कपड़े पहन चुकी थी और थर-थर कांप रही थी। इसने सिर्फ एक लड़की को पिस्तौल के साथ कमरे में दाखिल होते देखा था, लेकिन अब दूसरी लड़की को राइफल लिए देखकर इसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई थी। सुल्तान ने इसे बालों से पकड़ के जोरदार झटके दिए, उस कालीन पर गिरा दिया। तुम जैसी आवारा और बच्चलन औरतों ने औरतों का नाम बदनाम कर रखा था। औरत के नाम पर बदुमा धब्बा हो तुम, सुल्ताना घुर्राई। वो औरत कालीन पर बड़ी थर-थर कांप रही थी। ये लोग मुझे जबरदस्ती उठा लाए थे, वो रोते हुए बोली। चुप रह। न्यायालय से कोई ठोकर मारी। अगर ये तुम्हें जबरदस्ती उठाकर लाए तो तुम्हें अपना बचाव क्यों नहीं किया? शोर क्यों नहीं मचाया? चीखी चिल्लाई क्यों नहीं? मैंने तुम्हारे कहके सुने थे। जबरदस्ती उठाई जब लड़की इस तरह कहके नहीं लगाती। अब्दुल कुद्दूस की तरफ मुड़ गई। 3-4 रस्सियां तलाश करो और इन्हें बांध दो। अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी करो। नायला ने उनमें से एक की राइफल उठा ली। वो और सुल्ताना दहशतगर्दों पर राइफलें ताने खड़ी रही और अब्दुल कुद्दूस रस्सियां तलाश कर लाया। दूसरे कमरे में असला भी मौजूद है। वो बोला। क्लाशकोफ, राइफलें, मैगजीन, एमुनिशन की पेटी और रॉकेट वगैरह। ठीक है, तुम इन्हें बांधो, असला बाद में देख लेंगे, नायला ने कहा। अब्दुल कुद्दूस बारी बारी इन्हें बांधने लगा। इसी लम्हे दूसरे कमरे से टेलीफोन की घंटी बजी। नायला ने राइफल से बूबी को इशारा किया। चलो फोन अटेंड करो, और अगर तुमने इशारों में कोई बात कहने की कोशिश की तो छलनी कर दूंगी। नायला से राइफल की जद पर लेकर टेलीफोन वाले कमरे में आ गई। टेलीफोन सेट देखकर नायला की आंखों में चमक सी उभर आई। ये वो सेट था जिसमें स्पीकर लगा हुआ था और एक बटन दबाने से कमरे में बैठे हुए सब लोग फोन पर होने वाली गुफ्तगू सुन सकते थे। रिसीवर उठाने की जरूरत नहीं, बटन ऑन करो, नायला ने कहा। बॉबी ने करीब पहुंचकर फोन का बटन दबा दिया। यस बॉबी, ऑन द लाइन। बॉबी किसी के आगे झुककर बोला। पाशा बोल रहा हूँ बॉबी। टेलीफोन स्पीकर पर आवाज सुनाई दी। आज सुबह 5 बजे तुम अपने आदमी को लेकर कुरंगी पहुंच जाओ। गंदे नाले के पुल के करीब बदर तुम्हें गाड़ी में अपने आदमी के साथ तैयार मिलेगा। जामे मस्जिद वहाँ से ज्यादा दूर नहीं। फजर की नमाज शुरू होती ही तुम लोगों को कार्रवाई करनी है। जब तुम लोग वहाँ से रुखसत हो तो आधे से ज्यादा नमाजियों की लाशें पड़ी होनी चाहिए। लेकिन पाशा, लेकिन कुछ नहीं। पाशा ने इसकी बात काट दी। तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। पुलिस को वहाँ से तकरीबन 1 मील दूर मसरूफ रखा जाएगा। तुम अपने आदमियों को लेकर ठीक 5 बजे वहाँ पहुँच जाओगे। लाइन कट गई। बॉबी ने बटन ऑफ करके नायला की तरफ देखा। इसका चेहरा धुआं हो रहा था। कितना खौफनाक मंसूबा बनाया था इन लोगों ने। पाशा कौन है और कहाँ रहता है? मैं 3 तक गिनूंगी। अगर मुझे जवाब न मिला तो ट्रैगर दबा दूंगी। नायला ने घुराते बॉबी पर राइफल तान ली। और पाशा? बॉबी हकला गया और फिर वो पाशा का पता बताने लगा। चलो उसी कमरे में, नायला ने कहा। अब्दुल कुद्दूस बॉबी के दोनों साथियों और इस औरत के हाथ पैर बांध चुका था। बॉबी के भी हाथ पैर बांध दिए गए और फिर उनके मुंह पर कपड़े ठोस दिए गए। चलो जल्दी करो, एक और साजिश का इंकशाफ हुआ है। कई लोगों की जिंदगी खतरे में है। नायला ने कमरे में कालीन पर पड़ा हुआ ब्रीफकेस उठा लिया जो जख्मी उंगली वाले ने इसे रिश्वत के तौर पर पेश करने की कोशिश की थी। वो बंगले से बाहर आकर दौड़ते अपनी गाड़ी में आ गई। इस मरतबा स्टीयरिंग नायला ने संभाला था। इस बंगले में अगरचे कई मरतबा फायरिंग हो चुकी थी, लेकिन पुलिस का दूर तक नामोनिशान नहीं था। शॉपिंग सेंटर के पास टेलीफोन बूथ के करीब नायला ने गाड़ी रोक ली और नीचे उतरकर फिन का रिसीवर उठा लिया। इन टेलीफोन बूथ्स पर बाद इमरजेंसी नंबर मिलाने के लिए कार्ड की जरूरत नहीं थी। इसने पुलिस इमरजेंसी का नंबर मिलाया। कॉल फौरन रिसीव कर ली गई। नॉर्थ निजामाबाद बलाकाई के एक बंगले में चंद दहशतगर्द बंधे हुए हैं। ये दहशतगर्द भारतीय इंटेलिजेंस रॉ की तरबियत याफ्ता है। इस बंगले में बड़ी मिकदार में असला भी मौजूद है। तफसील से तलाशी लेंगे तो और भी बहुत कुछ मिल सकता है। नायला ने बंगले का नंबर बता दिया। आप कौन है मोहतरमा? ड्यूटी ऑफिसर ने पूछा। पूरी इसरार लड़की। नायला ने जवाब दिया। क्या मतलब? ड्यूटी ऑफिसर के लहजे में हैरत थी। कल गुलशन पुलिस ने 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके कब्जे में ले लिया था और इस वक्त मैं भी वहाँ मौजूद थी, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आ सकी थी। गुलशन पुलिस ने मुझे पुलिस औरत का नाम दिया था, लेकिन मैं औरत के बजाय लड़की कहलाना पसंद करूंगी। ओह, ड्यूटी ऑफिसर चौंक गया। एक और अहम इत्तला है, नायला ने कहा। दहशतगर्दों ने आज सुबह फजर की नमाज के वक्त कुरंगी की एक जामे मस्जिद में नमाजियों के कत्लेआम का मंसूबा बनाया है। दहशतगर्द ठीक 5 बजे
गंदे नाले के करीब एक कार में मौजूद होंगे। इन्हें अपने दूसरे साथी को इंतजार होगा। नमाज शुरू होते ही ये लोग बेगुनाह नमाजों पर फायरिंग खोल देंगे। इस वक्त मुकामी पुलिस को वहां से तकरीबन 1 मील दूर मसरूफ रखने की कोशिश की जाएगी। आप मजाक तो नहीं कर रही मोहतरमा? ड्यूटी ऑफिसर ने पूछा। गुलशन इकबाल वाला वाक़या तो दुरुस्त है, लेकिन कहाँ गुलशन और कहाँ नार्थ नाज़िमाबाद और कहाँ कोरंगी? बात कुछ समझ में नहीं आई। गुलशन पुलिस के हेड कांस्टेबल ने मुझे पुरसा औरत का नाम दिया है। उसने ठीक ही कहा था, नायला ने कहा। मैंने आपको इतला दे दी है। अगर कोरंगी की जामे मस्जिद में किसी नमाजी का खून का एक कतरा भी बहा तो इसका जिम्मेदारी आप पर होगी। मिस्टर ड्यूटी ऑफिसर, पहली फुर्सत में इंतजाम कीजिए और नार्थ नाज़िमाबाद वाले बंगले पर पुलिस पार्टी भेज दीजिए। नायला ने बंगले का नंबर एक बार फिर दोहराया और फोन बंद कर दिया। वो दोबारा कार में बैठ गई। इस दौरान सुल्तानपुर को दूसरे रेफरी सीटों के नीचे छुपा चुके थे। नायला ने इंजन स्टार्ट कर दिया और गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी। गाड़ी गली से निकलकर मेन रोड पर पहुंची थी कि दाएं तरफ से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। एक नहीं 2 मोबाइल थी जो तेजी से इनके करीब बुलाक आई वाली सड़क पर उड़ गई। नायला के होंठों पर खुशी से मुस्कुराहट आ गई। वो गाड़ी को लेकर बाईं तरफ मोड़कर इसकी रफ्तार बढ़ाती चली गई। रास्ते में इन्हें 2 जगह रोका गया, लेकिन किसी जगह भी इनकी कार की तलाशी ली गई और ना ही इनसे ज्यादा बासपुस की गई। एक जगह तो पूछने पर नायला ने पुलिस को बताया था कि इनके एक अजीज को गोली लगने की इत्तला मिली है और वो लोग अस्पताल जा रहे हैं। जब वो लोग मोती महल के करीब पहुंचे तो इन्हें दूरी से देख लिया कि आगे गुलशन चुरंगी पर पुलिस मोबाइल खड़ी थी और पुलिस वहां से गुजरने वाले इक्का दुक्का गाड़ियों को चेक कर रहे थे। मोती महल का पुल पार करते ही नायला ने गाड़ी ब्लॉक 3 की गली में मोड़ दी और फिर गलियों में होती हुई गाड़ी डिस्को बेकरी के चौक पर मेन रोड पर निकल आई। जब वो बंगले पर पहुंचे तो सुबह के 4 बज रहे थे। नायला ने गाड़ी पोस्ट में रोक दी, खुद स्टीयरिंग के सामने बैठी रही। इस इंजन भी बंद नहीं किया था। तुम दोनों इस आशिक मिजाज मेहमान को ले आओ, इसे भी छोड़ आए, नायला ने कहा। कैसा मेहमान? अब्दुल कुद्दूस के लहजे में हैरत थी। अंदर जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा, नायला ने मुस्कुराते हुए कहा। सुल्तान और अब्दुल कुद्दूस अंदर चले गए। कुछ देर बाद अनीस को घसीटते हुए ले आए। अनीस को पीछे सीट पर डालकर इसकी आंखों पर दुपट्टा बांध दिया गया। नायला के इशारे पर अब्दुल कुद्दूस अगली सीट पर बैठ गया। सुल्तान ने गेट खोल दिया और नायला गाड़ी को बाहर ले आई। कई गलियों में घूमने के बाद इसने गाड़ी रेजिडेंसी अपार्टमेंट के सामने एक ज़ेरे तामीर इमारत के करीब रोक दी और इंजन बंद करके नीचे उतर आई। इसने अनीस की आंखों से पट्टी खोल दी। सुबह होने में ज्यादा देर नहीं है, वो अनीस पर झुकते हुए बोली। कोई ना कोई तुम्हें इस अजियत से निजात दिला देगा और आइंदा औरतों के सिलसिले में मुहतात रहना, वरना किसी रोज जान से हाथ धो बैठोगे। वो दोनों तेज कदम उठाते हुए गली में घुस गए। इन्हें अपने बंगले तक पहुंचने में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। सुल्तान इंतजार में बरामदे में बैठी थी। इन्हें देखती उठ गई और वो तीनों अंदर आ गए। वो ब्रीफकेस कहाँ है? खोलकर देखा, नायला ने पूछा। अंदर रखा, मैंने नहीं खोला, सुल्ताना ने जवाब दिया। ब्रीफकेस ड्राइंग रूम की मेज पर रखा हुआ था। इसका ताला नंबरों वाला था, लेकिन नायला ने नंबरों को मुम्मा हल करने में वक्त ज़ाहिर करने की कोशिश नहीं की। इसने ब्रीफकेस अब्दुल कुद्दूस के हवाले कर दिया। इसके ताले तोड़कर दिखाओ। अब्दुल कुद्दूस प्लास ले आया। इसे ब्रीफकेस के ताले तोड़ने में 5 मिनट लगे थे और जब इसका ढकना उठाएगा तो तीनों की आंखें चमक उठी। ब्रीफकेस में नोट भरे हुए थे और बिलाशुबा लाखों की रकम थी। इसे भी दूसरे ब्रीफकेस साथ अलमारी में रख दो। नायला ने ब्रीफकेस बंद करके सुल्ताना के हवाले कर दिया। सुल्ताना ने ब्रीफकेस अलमारी में बंद कर दिया। कुछ देर तक बातें करते रहे, फिर अपने अपने बिस्तरों में जाकर सो गए। वो दोपहर तक सोते रहे। अब्दुल कुद्दूस जब बेदार हो तो 1:30 बज चुका था। इसे अफसोस हो रहा था कि वो यूनिवर्सिटी नहीं जा सका। सुल्ताना इस वक्त किचन में थी और दोपहर का खाना पकाने की तैयारी कर रही थी। 2:30 बजे दोपहर का खाना खाया गया और फिर अब्दुल कुद्दूस अपने कमरे में बंद हो गया। 1 माह बाद इसके इम्तिहान होने वाले थे और वो पढ़ाई में नागा नहीं करना चाहता था। शाम 6 बजे के करीब सुल्ताना इसके कमरे में घुस आई। चलिए जनाब, शाम की चाय तैयार है, सुल्ताना ने मुस्कुराते हुए कहा। अब्दुल कुद्दूस इसके साथ ड्राइंग रूम में आ गया। नायला दुरानी पहले ही वहाँ मौजूद थी। तीनों चाय पीने लगे और फिर रात 10 बजे नायला और सुल्ताना किसी गाड़ी की तलाश में निकल खड़ी हुई। इन्हें आज पाशा के खिलाफ कार्रवाई करना थी, इसके लिए भी गाड़ी की जरूरत थी। इन्हें मायूसी नहीं हुई। रात 11 बजे वे एक शिराट पर वापस आ गए, लेकिन इस मर्तबे के साथ कोई नहीं था। और फिर रात 1 बजे वो तीनों अपने एक खतरनाक मिशन पर निकल खड़े हुए थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, नायला दुरानी उसके साथियों की वतन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई अभी जारी है। बकिया वाक़या अगली किस्त में देखते रहिए। उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।